Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Unlock English Success. So you all know that we are working on the new English book of first year, and this video is about all the question answers which are mentioned in the exercise of unit number 4, that is Team Moon. Okay, I have already uploaded the translation of this unit and question answers. You can go and watch it in my playlist. And before starting this particular video, I want to request everyone to please subscribe my channel and share some positive comments, because they really help in motivating me to prepare more videos for you all. Okay, so without wasting any more time, let's start. So in the exercise you can see that there were few question answers which I have already uploaded, and the next is the B part, that is about read the passage and answer the questions to explore how the setting of the Apollo 11 mission shapes the characters and plot of the Team Moon. So this question is kind of a critical question, because in this we have to analyze the plot of a story, and you all know that whenever a story is written or a novel is written, it must have a plot. Okay, and the plot of the story must have few parts, like the exposition of the story, then rising action, then climax, okay, then resolution. So in the same way they have given us a passage from the story, and then they have asked us different questions, so we will be doing it. So passage is, in mission control, every screen flickered with data, every person was on edge, their eyes glued to the monitors tracking the lunar module. The room was filled with tension and the hum of machinery, a space where every decision had immediate far-reaching consequence. So this passage is taken from the chapter number 4, Team Moon, and now they have few questions related to this passage. That क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इम्पैक्ट ऑफ सेटिंग ऑन द कैरेक्टर, कि ये जो स्टोरी है उसकी जो सेटिंग है उसका इम्पैक्ट कैरेक्टर्स के ऊपर क्या है. ठीक है, हाउ डज द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल इन्फ्लुएंस द एक्शंस, इमोशंस एंड डिसीजंस ऑफ द कैरेक्टर्स वर्किंग देयर. कि ये जो मिशन कंट्रोल सेंटर की जो सेटिंग है उसका इस पूरी स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं, इनके डिसीजंस और इनके इमोशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. ओके, then they are asking the influence on the plot. How does the high stakes environment of mission control center drive the plot forward? Consider how the setting impacts the tension and decision making in the story. ठीक है, अब हमने ये भी बताना है कि मिशन कंट्रोल का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से स्टोरी को आगे लेके जा रहा है और वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है. देन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, how does the historical setting of the space race influence the motivations of the characters and the urgency of the mission. ठीक है, किस तरह से ये जो हिस्टोरिकल सेटिंग है स्पेस रेस की, कि कौन जो है, कौन सा कंट्री वो स्पेस में अपना बढ़तरी दिखाता है, अपनी डोमिनेंस दिखाता है, वो किस तरह से मोटिवेशंस को और एक करेक्टर्स की पर्सनालिटी को इन्हांस कर रहा है. सो वी विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज 3 क्वेश्चंस वन बाय वन. ओके, लेट मी शो यू. So here are the answers, and I have divided this in 3 different paragraphs. You can see the first one is impact of the setting of the characters, कि हम ये देखेंगे कि उस मिशन कंट्रोल सेंटर की जो सेटिंग थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था कैरेक्टर्स के ऊपर. आंसर इज, द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर वेयर एवरी मूवमेंट, डिसीजन एंड वर्ड मस्ट बी प्रिसाइज. ठीक है, जो सेटिंग है वो इतनी हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर बिल्डिंग है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर बिल्डअप हुआ है कि हर हरकत, हर डिसीजन जो है वो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए. द टेंशन फोर्सेस द कैरेक्टर्स टू रिमेन हाइपर फोकस्ड, और जो टेंशन क्रिएट हुई है ऑब्वियसली वो डिमांड करती है कि हर कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से फोकस्ड रहे, अलर्ट रहे. काम अंडर स्ट्रेस, परेशानी के अंदर भी वो अपने आप को काम रखे, एंड रेडी टू रिएक्ट इंस्टेंटली टू एनी चेंज इन द डेटा, और डेटा में जैसे जैसे कोई तब्दीली आए उसके साथ साथ वो अपने फैसले भी ले सकें. देयर इमोशंस, नर्वसनेस, determination and fear are heightened by the stakes, and their actions are guided by the knowledge that one wrong step could jeopardize the mission.
ठीक है। और उनके जो इमोशंस हैं, उनकी नर्वसनेस और उनका पुख्ता इरादा, उनका खौफ, वो सब के सब जो है ये क्लियरली जानते हैं कि उनका एक एक कदम, एक एक फ़ैसला जो है वो इस मिशन की कामयाबी या नाकामी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑन द प्लॉट, कि प्लॉट के ऊपर क्या असर है। So because mission control is a high stakes environment, the plot naturally carries urgency and suspense, ठीक है। मिशन कंट्रोल ऑब्वियसली एक बहुत ही हाई स्टेक एनवायरनमेंट है, तो ऑब्वियसली प्लॉट भी जो है वो सस्पेंस और अर्जेंसी रखता है। एवरी अपडेट फ्रॉम द लूनर मॉड्यूल ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड, और एक एक अपडेट जो आ रही है लूनर मॉड्यूल से वो स्टोरी को आगे लेके जाती है। द सेटिंग एम्पलीफाइज टेंशन एंड कीप्स द रीडर एंगेज्ड, ठीक है। और सेटिंग ऐसी है कि वो मुसलसल रीडर को इंगेज रख रही है सस्पेंस क्रिएट करके और टेंशन से। एज कैरेक्टर्स मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल टाइम, इट टर्न्स द मिशन इनटू अ रेस अगेंस्ट टाइम, और ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वक्त के साथ कोई रेस है। मेकिंग ईच डिसीजन इन टर्निंग पॉइंट इन द प्लॉट, और प्लॉट के अंदर जो भी कोई डिसीजन लेना है वो प्लॉट को आगे ही लेके जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। The Apollo 11 mission took place during the space race between the United States and the Soviet Union, adding immense national and global pressure, ठीक है। अपोलो 11 मिशन जो था वो एक्चुअली में रशिया और यूएस के बीच में स्पेस रेस को लेकर था, ठीक है, जिसकी वजह से एक ग्लोबल प्रेशर भी बिल्टअप हुआ था और साथ में ही बहुत ही ज़्यादा एक नेशनल प्राइड को बरकरार रखने की भी कोशिश थी। दिस कॉन्टेक्स्ट इंटेंसिफाइज द कैरेक्टर्स मोटिवेशंस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो थी वो कैरेक्टर्स की मोटिवेशंस को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। दे आर नॉट जस्ट वर्किंग फॉर पर्सनल अचीवमेंट बट रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री, ठीक है। वो सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे। एंड प्रूविंग ह्यूमन कैपेबिलिटी, और साथ में ये भी बता रहे थे कि इंसान किस काबिल है। द अर्जेंसी कम्स फ्रॉम बोथ द टेक्निकल रिस्क एंड द पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडिंग फर्स्ट, ठीक है। और ये चीज़ दिखाती है कि किस तरह से हमारे पॉलिटिकल जो मफादात हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ज़ातियात पे। डन, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर सी। ओके, ब्रेक डाउन द स्टेजेस ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट इन टीम मोन यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जिस तरह से एक प्लॉट और स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके जो जैसे एक्सपोजिशन है, मतलब स्टोरी का आगाज़ कैसे हो रहा है, फिर राइजिंग एक्शन है कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, एक प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के मेथड्स अपनाए जाते हैं। क्लाइमेक्स है जो उसका बिल्कुल अरूज, जहाँ पे हर किस्म की मसाइल और हर तरह का जो सस्पेंस है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। दैन फॉलिंग एक्शन, कि किस तरह से मसाइल हल होना शुरू होते हैं, स्टोरी अपनी एंडिंग की तरफ जा रही होती है। एंड देन क्रिटिक ऑफ द प्लॉट डेवलपमेंट, अब प्लॉट डेवलपमेंट के बारे में तनकीदी जायज़ा, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि इस टीम मोन जो स्टोरी है उसके प्लॉट की डेवलपमेंट के जितनी भी स्टेजेस हैं उन सबको आप लोगों ने एनालाइज करना और बताना है, ठीक है। सो हेयर आर ऑल द क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर ऑल दीज सेपरेटली। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एक्सपोजिशन, ठीक है, स्टोरी के आगाज़ से है इंट्रोडक्शन इसका। आइडेंटिफाई व्हाट की इन्फॉर्मेशन डज द ऑथर प्रोवाइड एट द बिगिनिंग टू सेटअप द स्टोरी, स्टोरी सेटअप करने के लिए राइटर ने स्टार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। देन इवेल्यूएट, कि आपने उसका जायज़ा भी लेना है। हाउ डज द एक्सपोजिशन इंगेज द रीडर एंड एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट फॉर द मिशन, कि किस तरह से स्टोरी का स्टार्ट जो है वो रीडर को अपने साथ इंगेज करता है, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। So exposition, identify the author introduced the Apollo 11 mission, the goal of landing of the man on the moon, the massive team behind the effort and the tense exacting work inside mission control, ठीक है। अपोलो 11 मिशन की जो स्टोरी है उसके बारे में राइटर हमें इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। और ये भी बता देता है कि उनका गोल क्या है, कि इन्होंने इंसान को चांद के ऊपर लेके जाना है और इन सारे एफर्ट के पीछे कितने लोगों की कोशिशें हैं और एक पूरा जो टेंस एनवायरनमेंट है मिशन कंट्रोल सेंटर सब भी उसमें एक्सपोजिशन में उसने बता दिया, ठीक है। अब हम इवेल्यूएट करेंगे कि किस तरह से उसकी एक्सपोजिशन जो है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस सेटअप इंस्टेंटली हुक्स द रीडर विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड डेंजर, ठीक है। जो स्टार्ट ही है ना स्टोरी का वो
प्रॉपर रीडर को अपनी तरफ बांध लेता है, ठीक है। और नो डाउट इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, लेकिन साथ साथ ये पूरी उस स्टोरी से रिलेटेड, उस इंसिडेंट से रिलेटेड जितने भी खतरात हैं उनको भी बताता है। It establishes the stakes, introduces the mission's complexity and lays the foundation for the theme of teamwork and preparation, showing how hundreds of experts are needed for one goal. ठीक है, तो ये स्टोरी हमें बताती है कि किस तरह से मिशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लाखों लोगों की मेहनत लगी हुई है और टीम वर्क कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस मिशन को कामयाब करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द राइजिंग एक्शन, कि स्टोरी में कैसे कैसे आगे डेवलपमेंट होती है और उसके बारे में क्वेश्चन कौन कौन से। व्हाट इवेंट्स और चैलेंजेस बिल्ड टेंशन एंड लीड अप टू द क्लाइमैक्स, इवेल्यूएट हाउ डू दीज मूवमेंट्स डेवलप द थीम ऑफ टीम वर्क एंड प्रेपरेशन। ठीक है, हमने पहले तो बताना है कि क्लाइमैक्स की तरफ ले जाने वाले वाक़यात क्या क्या थे और कैसे ये जो हैं उनकी टीम वर्क और प्रेपरेशन को आगे लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स एंड अनसर्टेनिटीज़ अराइज ड्यूरिंग द मिशन, फ्यूल कंसर्न्स, कम्युनिकेशन इश्यूज, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स। These challenges force quick thinking and coordination between astronauts and mission control. ठीक है, अब राइजिंग एक्शन में ऑब्वियसली वो सारे प्रॉब्लम्स हमने बताने हैं कि जिसकी वजह से स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट हो रहा है और आगे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। तो ये सारे हम बताएंगे कि किस तरह से फ्यूल के बारे में कंसर्न्स हैं, फिर बातचीत कैसे होगी और रास्ते में जितनी रुकावटें वो कैसे पूरी होंगी। ये सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट टीम वर्क चाहिए। इवेल्यूएट करेंगे कि वेदर दीज वर गुड और नॉट। ईच कॉम्प्लिकेशन रेजेज द टेंशन। ठीक है, हर कॉम्प्लिकेशन टेंशन बढ़ा रही है, मेकिंग द रीडर एंशियस अबाउट वेदर द मिशन विल सक्सीड, जिसकी वजह से रीडर जो है वो इंस्टिगेट होता है आगे जानने के लिए, आगे पढ़ने के लिए कि क्या ये मिशन कामयाब हुआ था या नहीं हुआ था। Next we will move to the climax. Identify, describe the pivotal moment when the outcome of the mission is most uncertain. ठीक है, क्लाइमैक्स होता है वो उर्दू में जिसको कहते हैं अरूज। ठीक है, एक एक्सट्रीम लेवल जहाँ पे टेंशन जो है वो हाइट पे पहुँच जाती है। देन इवेल्यूएट हाउ डज द ऑथर बिल्ड सस्पेंस एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, एंड द आंसर इज climax. The most critical moment comes when the lunar module is about to land with only seconds of fuel left. The outcome is uncertain. Success or failure could hinge on one decision. और evaluation क्या है इसकी? The author builds suspense by focusing on real-time updates, tense dialogue, and the countdown of fuel, making the reader feel the urgency and danger. ठीक है, तो क्लाइमैक्स भी है वो फुल सस्पेंस क्रिएट करने में कामयाब रहा है। देन है जी सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ अ प्लॉट, दैट इज़ फॉलोइंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, कि किस तरह से सस्पेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू होता है, सारे मसाइल का हल निकलना शुरू होता है और स्टोरी अपनी एक प्रॉपर एंडिंग की तरफ जा रही है। सो द क्वेश्चंस आर, व्हाट हैपेंस आफ्टर द क्लाइमैक्स, हाउ दिस इज द मिशन रिजॉल्व, एंड हाउ डज द रेजोल्यूशन हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटायर टीम। Yes. After the successful landing, release sweeps through mission control and the astronaut prepare for the moonwalk. The crisis has passed, but the work continues. ठीक है, अब वो जो एक टेंस इन्वायरमेंट था, क्लाइमैक्स था कि किस तरह से वो लैंड करेगी, वो हो चुका है। अब उसके बाद फर्दर स्टेप्स हैं। This stage gives the reader a moment to breathe while showing that even after success, careful planning and teamwork are still required. ठीक है, ऑब्वियसली रीडर को थोड़ा सुकून आया कि फाइनली मिशन इज़ अबाउट टू अकम्प्लिश्ड, लेकिन स्टिल अभी भी उसके पूरे होने में कुछ और टेक्निकलिटीज़ बाकी हैं, उनको भी पूरा करना है। देन कम्स द क्रिटिक ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट, कंसिडर द पेसिंग एंड फ्लो ऑफ द प्लॉट, हाउ इफेक्टिवली डज द ऑथर ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, हमने प्लॉट के बारे में बताना है कि ओवरऑल इसकी कैसे थी वो। Resolution, the mission is completed, the astronauts safely return to Earth, the team's efforts are recognized and history is made. The resolution highlights that success wasn't just about the astronaut but about the hundreds of people working behind the scenes. It reinforces the theme of teamwork.
देन कम द क्रिटिक ऑफ द प्लॉट, कि प्लॉट को हमने कैसे इवेलुएट करना है. द पेसिंग इज़ टाइट एंड सस्पेंसफुल, ठीक है, कहानी की जो एक रफ्तार है वो बहुत ही टाइट है, सस्पेंस वाली है. मूविंग स्मूथली फ्रॉम प्रेपरेशन टू क्राइसिस टू रेजोल्यूशन, और बहुत ही स्मूथली चल रही है, किस तरह से स्टार्ट हुई, तैयारी किस तरह से हुई और सब कुछ कैसे रिजॉल्व हुआ. द ऑथर ट्रांजिशंस इफेक्टिवली बिटवीन स्टेजेस बाय लिंकिंग ईच चैलेंज टू द नेक्स्ट, making them feel like continuous urgent chain of events. The rising action is well built, the climax is intense and the resolution provides satisfying closure. ठीक है, प्लॉट के जितने भी स्टेप्स हैं उन सब पे ये स्टोरी पूरी उतरी है, ठीक है, एंड इट्स अ वेल निट प्लॉट. नेक्स्ट इज द डीप आर्ट. Read the script below and analyze how the author contrasts the points of view of different characters or contributors. ठीक है, अब अगेन उन्होंने हमें एक सेंटेंस दे दिया है, बल्कि 2 डिफरेंट सेंटेंस और उनसे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो हमने इनको एनालाइज करना है. अच्छा जी, ऑथर एस्ट्रोनॉट के पर्सपेक्टिव क्या है. एज द वर्ल्ड वॉच, द एस्ट्रोनॉट्स वर नॉट अलोन, दे कैरिड द होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ थाउजेंड्स हु वर्क टायरलेसली एंड गेट देम देयर. अब इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से क्या है. फॉर द इंजीनियर्स एवरी कैलकुलेशन वॉज अ स्टेप टूवर्ड हिस्ट्री बट ऑल्सो अ स्टेप इन टू द अननोन. देयर वर्क वॉज नॉट जस्ट टेक्निकल, इट वॉज डीपली पर्सनल. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एस्ट्रोनॉट के हवाले से एक सेंटेंस दिया है, फिर इंजीनियर्स के हवाले से भी एक सेंटेंस दिया है, तो हमने इन दोनों को एनालाइज करना है. अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ डू द पर्सपेक्टिव ऑफ द एस्ट्रोनॉट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द इंजीनियर्स, के एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है वो बताना है. देन इफेक्ट ऑन द रीडर, हाउ डू दीज कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिशन. ठीक है, और एक रीडर जो है वो इन दोनों कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स को समझ के उनके ऊपर, रीडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. Then developing the theme, how do these different perspective contribute to the theme of the teamwork and collective effort, और थीम के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है. हम इन सब का आंसर लिखेंगे 1 by 1. ओके, here we are. कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जी. एस्ट्रोनॉट्स पर्सपेक्टिव क्या है, फोकस्ड ऑन रिप्रेजेंटिंग द होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ थाउजेंड्स, देयर रोल इज सिम्बॉलिक एंड विजिबल टू द वर्ल्ड. और दूसरे पे इंजीनियर्स क्या कह रहे हैं, फोकस्ड ऑन द टेक्निकल एंड पर्सनल चैलेंजेस ऑफ मेकिंग द मिशन सक्सीडेड, देयर वर्क इज बिहाइंड द सीन्स एंड डीपली टाइड टू प्रिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. रीडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. दीज कॉन्ट्रास्ट हेल्प द रीडर सी दैट अपोलो 11 was more than just astronauts walking on the moon. It was a result of countless hours of hidden effort. It expands the understanding of the mission beyond the famous televised moments. देन थीम जो थी उसको कैसे डेवलप किया गया है. डिफरेंट पर्सपेक्टिव हाईलाइट द टीम वर्क रिक्वायर्ड बाय शोइंग बोथ द पब्लिक heroic side and the unseen technical side. The story reinforces the idea that every role mattered in achieving success. ठीक है, अब राइटर ने हमें दोनों व्यू पॉइंट्स दिखाए. ठीक है, एक व्यू पॉइंट जो सबको नज़र आ रहा था, जो पूरी दुनिया देख रही थी कि किस तरह एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो चांद के ऊपर उतरे और चांद पे उन्होंने चहलकदमी की. दूसरा एस्पेक्ट वो था जो किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऑब्वियसली वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था जितना कि एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग, और वो थे इंजीनियर्स. ठीक है, वो ऑब्वियसली स्क्रीन के सामने नहीं थे, वो स्क्रीन की बैक पे थे, लेकिन उनके आइडियाज़, उनका टीम वर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में. ठीक है, अंडरस्टैंड. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द ई पार्ट. Read the passages and identify whether the writing is descriptive, argumentative or persuasive. अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है टीम मून, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करी है. whether it is descriptive, या ये argumentative है, या ये persuasive है. ठीक है, तो हमने उसको जज करना है. और लेकिन उन्होंने सामने एक पैसेज भी दे दिया है. Without the unsung heroes, the seamstresses, engineers and flight controllers, the moon landing would have remained a dream. Their stories, often overshadowed, are what truly defines success in mission like Apollo 11. So questions are, identify the writing style. Writing style क्या है? Is this passage descriptive, argumentative or persuasive? कि ये जो passage है वो किस तरह का है, वो descriptive है, argumentative है या persuasive है. फिर एग्जामिन ऑथर्स पर्पस. व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इन दिस पैसेज, और ऑथर को ये लिखने का पर्पस क्या है पीछे. और क्रिटिक द इफेक्टिवनेस.
और फिर हमने जज करना है कि कितना ऑथर कामयाब हुआ है इस पर्सपेक्टिव को अपना बयान करने में. Evaluate how effectively the author conveys their purpose. The text succeeded in shifting the reader's perspective. Okay. So here is the answer. Writing style is persuasive. The author is convincing the reader that the moon landings, the true success depends on the unsung heroes. ठीक है, persuasive है और जी हमें बता रहा है कि किस तरह से बहुत सारे लोगों की, और ऐसे लोग जो स्क्रीन पे आए भी नहीं, जिनके बारे में कहीं पे कोई नाम नहीं था, ठीक है, बट वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे इस मिशन की सक्सेस के लिए. फिर पर्पस क्या था ऑथर का, उसमें कामयाब हुआ कि नहीं. टू परसुएड द रीडर टू अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज द हिडन कंट्रीब्यूटर्स लाइक सीमस्ट्रेसेस, इंजीनियर्स एंड फ्लाइट कंट्रोलर्स हुज वर्क वाज वाइटल टू अपोलो 11. ठीक है, ऑथर का पर्पस यही था कि वो रीडर्स को बताए कि सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही इसमें काम नहीं कर रहे थे, बल्कि लाखों और लोग भी थे. ठीक है, और उन सारे लोगों के बारे में उसने बताया हमें. अब देखते हैं कि वो पूरा उतरा है कि नहीं. इफेक्टिवनेस उसकी देखते हैं. द टेक्स्ट इज इफेक्टिव बिकॉज इट अपील्स टू फेयरनेस एंड रिकग्निशन बाय कॉलिंग दीज कंट्रीब्यूटर्स अनसंग हीरोज and stating the moon landing would have been impossible without them. It shifts the reader's focus from just the astronauts to the whole team. ठीक है, obviously राइटर जो है वो अपने इस पर्पस में कामयाब हुआ है. ठीक है, रीडर जो है वो इम्प्रेस हुए हैं कि सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स की एफर्ट नहीं थी, बल्कि बहुत और लोगों की भी एफर्ट थी, और इन सब ने मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर काम किया और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया. डन. Okay, let's move to the F part of the story. Imagine that one of the structural elements in Team Moon is changed. Predict how this change would affect the narrative, its themes and the reader's experience. अब वो बता रहे हैं कि अगर let's suppose Team Moon में से जो उसका स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे वो प्लॉट की एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स है, रेजोल्यूशन है, उनमें से कुछ भी चेंज हो जाता है तो वो इस स्टोरी के नैरेटिव, उसके थीम और रीडर्स के एक्सपीरियंस को कैसे चेंज करता है. ठीक है, सिनेरियो 1. अब उन्होंने सिनेरियो भी बता दिया. मूविंग टू क्लाइमैक्स. द टेंस मूवमेंट्स ऑफ द लूनर लैंडिंग आर डिस्क्राइब टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स ऑफ द नैरेटिव, बिल्डिंग सस्पेंस एज द रीडर एंटिसिपेट्स द आउटकम. चेंज क्या करेंगे जी. प्रिडिक्ट हाउ द स्टोरी वुड चेंज इफ दीज मोमेंट्स वर डिस्क्राइब एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक. अब कह रहे अगर क्लाइमैक्स वाले सीन बिल्कुल स्टार्ट पे बता दिए जाते फिर क्या होता. prediction prompt, how would this change affect the suspense and engagement of the reader. और अगर ये चेंज हो जाता तो फिर उसका रीडर के सस्पेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता. फिर उन्होंने सिनेरियो 2 भी बता दिया है. ऑल्टरिंग द सीक्वेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, कि अगर हम ये जो पर्सपेक्टिव उसने डिफरेंट बताया था एस्ट्रोनॉट्स के, सीमस्ट्रेसेस के, इंजीनियर्स के, उन सबको अगर सीक्वेंस चेंज कर दे तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा. ओरिजिनल क्या है. द स्टोरी स्विचेस पर्सपेक्टिव बिटवीन डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स सच एज इंजीनियर, सीमस्ट्रेसेस, एस्ट्रोनॉट्स थ्रू द बुक. चेंज अगर प्रिडिक्ट हाउ द नैरेटिव वुड बी इफेक्ट इफ द स्टोरी वाज टोल्ड फ्रॉम ओनली वन पर्सपेक्टिव. अगर सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के पर्सपेक्टिव से बताया जाता तो फिर क्या होता. और प्रिडिक्शन प्रॉम्प्ट, हाउ वुड दिस चेंज इन्फ्लुएंस द थीम ऑफ टीम वर्क एंड कलेक्टिव एफर्ट. Would the story still effectively convey the contributors of all involved? Write your prediction below. ठीक है, अब उन्होंने हमें डिफरेंट सिनेरियोज दिए हैं और हमने उनके बारे में देखना है कि अगर वो चेंज होते तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता. अच्छा जी, सिनेरियो 1 है मूविंग द क्लाइमैक्स टू द बिगिनिंग. अगर हम क्लाइमैक्स को बिल्कुल स्टार्ट पे लिख देते तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है. If the tense lunar landing scene was at the start, suspense would drop because the reader would already know the outcome, and the build-up of tension and anticipation would be lost, and the story might feel less exciting. ठीक है, अगर वो पहले ही क्लाइमैक्स को स्टोरी के शुरू में बता देते तो फिर रीडर के लिए आगे पढ़ना बेकार था. उनके लिए कोई सस्पेंस नहीं होता क्योंकि उन्हें स्टोरी की एंडिंग या उसका रिजल्ट तो पहले ही पता चल गया. सो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी हेल्पफुल और स्टोरी इतनी एक्साइटिंग ना होती. सिनेरियो 2 था ओनली वन पर्सपेक्टिव. अगर सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के पर्सपेक्टिव से स्टोरी लिखी जाती तो फिर क्या होता. द थीम ऑफ टीम वर्क वुड वीकन बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, सीमस्ट्रेसेस एंड मिशन कंट्रोल वुडंट बी शोन. द स्टोरी वुड स्टिल बी इंस्पायरिंग बट इट वुड गिव द फॉल्स इंप्रेशन दैट एस्ट्रोनॉट्स अलोन मेड द मिशन सक्सीडेड. अगर स्टोरी सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती तो ऑब्वियसली टीम वर्क का जो थीम था वो वीक हो जाता और
फिर रीडर जो हैं वो फॉल्सली सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को ही इस मिशन के हीरो समझते और बाकी जितने लोगों की एफर्ट थी उनके बारे में कोई भी ना जानता. ठीक है. Next, we will move to the G part. Read the selected script from the Timon and answer the questions. Focus on how Catherine Temish word choice create effects such as tension, excitement, or emphasis on teamwork. The seamstress worked with meticulous care, knowing that each stitch could mean life or death for the astronauts. They stitched layer upon layer, their hands moving with the blend of quiet pride and immense responsibility. ठीक है. अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे मेटिकुलस केयर, फिर लाइफ और दैट, लेयर अपॉन लेयर, ब्लेंड ऑफ क्वाइट प्राइड एंड इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब कह रहे हैं इन सारे वर्ड्स का यूजेज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है. ठीक है. आइडेंटिफाई वर्ड्स फॉर इफेक्ट. विच वर्ड और फ्रेज इन दिस स्क्रिप्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीमस्ट्रेस वर्क. Then mood and tone. How do the words meticulous care, life or death, and quiet pride contribute the mood of the passage? What tone do these words set? And author's intent. Why do you think the author chose to describe the seamstresses work in this way? What effect does it have on the reader's perception of these characters? ठीक है. वन बाय वन हम इन सबको एनालाइज करेंगे. ठीक है. वर्ड फॉर इफेक्ट के जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था राइटर ने, उसके लिए जो उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो कितने हेल्पफुल हुए. So words for effect are meticulous care, life or death, quiet pride and immense responsibility. These phrases stress the precision, seriousness and dignity in the seamstress's work. ठीक है. ये सारे वर्ड जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि कितना वो काम इम्पॉर्टेंट था, सीरियस था और साथ में वो सीमस्ट्रेसेस की डिग्निटी भी बता रहा है. ठीक है. मूड और टोन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है. मूड है जी रिस्पेक्टफुल एंड सीरियस. इट मेक्स द रीडर फील द वेट ऑफ दिस टास्क. ठीक है. टोन एडमायरिंग एंड रेवरेंट. ठीक है. हमें मूड से क्या लग रहा है कि काम बहुत ही सीरियस है, रिस्पेक्टफुल है और हमें अंदाज़ा होता है कि उनका काम कितना अहम है. ठीक है. और टोन जो है वो एडमायरिंग है, ऑब्वियसली उनके काम की तारीफ़ भी हो रही है. द ऑथर ऑनर देयर डेडिकेशन. और ऑथर जो है वो दर्जनों के काम की तारीफ़ कर रहा है. ठीक है. अब ऑथर का क्या इरादा था. द ऑथर वांट्स रीडर्स टू सी सीमस्ट्रेसेस एज वाइटल प्रोफेशनल्स हु स्किल कुड मीन सर्वाइवल फॉर द एस्ट्रोनॉट. ऑथर हमें बताना चाह रहा है कि दर्जनें भी उतनी ही अहम थी जितने के एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि अगर वो ना होती, अगर वो अपने काम को डिलीजेंटली ना करती तो एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी या मौत उस पर डिपेंड करी थी. ठीक है. और अगर उनमें से कोई मर जाता तो मिशन सक्सेसफुल ना होता. This changes the reader's view, showing that even jobs outside the spotlight were critical to the mission success. ठीक है. और ये बताता है कि सिर्फ सामने वाले लोग नहीं बल्कि जो बैकग्राउंड पे लोग होते हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. Now comes the vocabulary and grammar portion of the exercise. Deduce the inferred meaning of these words using context clues from the text. ठीक है. अब ये उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमने कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि स्टोरी में वो कैसे यूज़ हुए और उनसे क्या मीनिंग निकल रहे हैं. ठीक है. सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस कॉलम. यू कैन सी मेटिकुलस का कॉन्टेक्स्ट क्लू है वर्क विद मेटिकुलस केयर. ईच स्टिच कुड मीन लाइफ और डेथ. और मीनिंग क्या बन रहा है उसका, क्या हम डिड्यूस करेंगे. मीनिंग वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज. द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिटिकल. अ क्रिटिकल मोमेंट इन द मिशन. An extremely important, decisive. Insurmountable. Context clue कि text में कहाँ use हुआ है. They faced what seemed like insurmountable challenge, impossible to overcome. Ingenuity. They solved problems with ingenuity when no clear solution existed. Cleverness and inventiveness. Okay. Next, use a dictionary to find the following information for each word. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने हमें 4 वर्ड दे दिए. मेटिकुलस, क्रिटिकल, इनसरमाउंटेबल, इंजेन्युइटी. सेम वही वर्ड है जो ऊपर क्वेश्चन में भी थे, लेकिन अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि डिक्शनरी में इसका क्या मीनिंग है. प्रोनाउंसिएशन मतलब इनको बोलने के लिए जो प्रोनाउंसिएशन लिखी होती है डिक्शनरी में वो क्या है. और पार्ट ऑफ स्पीच कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करें, वेदर इट्स वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. एंड देन एटिमोलॉजी के ओरिजिन कौन सा है, मतलब किस लैंग्वेज से ये वर्ड निकला है. So here is the answer. Meticulous dictionary meaning है showing great attention to detail, very careful and precise.
Meticulous, this is the pronunciation, okay, and part of speech is adjective, it's a describing word, and etymology is Latin. So meticulous meaning fearful and timid, ठीक है, Latin से ये निकला ये word, Latin language से. Next word is critical, of great importance, involving a turning point, expressing disapproval. So this is the pronunciation, critical. Again it's adjective, describing word है ये, और origin language is Greek, ठीक है, criticos meaning able to judge, while Latin criticus, ठीक है, Greek और Latin दोनों से मिलके बना. Then insurmountable, too great to be overcome, insurmountable, again it's adjective, prefix in not, surmount from old French surmonter, ठीक है, फ्रेंच से लिया गया है ये वर्ड. इंजेन्युइटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव. So this is the pronunciation, this is the UK pronunciation, and this is US pronunciation. So again Latin word is ingenuities, from ingenium meaning natural quality, talent, ठीक है. Use a dictionary to find and write the different word patterns for the word meticulous and dedicate. Complete the chart below by identifying the correct form of the verb. Meticulous and dedicate adds related form, ठीक है. अब हमने ये word meticulous और dedicate इनकी noun forms बनानी है, इनकी adjective forms भी बनानी है और इनकी adverb form भी बनानी है. So meticulous का noun meticulousness, adjective obviously meticulous, और adverb form उसकी meticulously. डेडिकेट का नाउन फॉर्म होगा डेडिकेशन, एडजेक्टिव फॉर्म होगी डेडिकेटेड, और एडवर्ब होगी डेडिकेटेडली. देन ई पार्ट, राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड मेटिकुलस. मेटिकुलस की सब फॉर्म्स के हमने सेंटेंस बनाने, ठीक है. उसको एज अ नाउन भी यूज़ करना है, एज अ एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी. सो मेटिकुलस एज अ एडजेक्टिव का सेंटेंस होगा, शी इज़ द मेटिकुलस आर्टिस्ट who pays attention to the tiniest details in her paintings. Meticulousness, noun, his meticulousness in preparing the report impressed the entire board. And meticulously, adverb के तौर पे use होगा, the jeweler meticulously examined the diamond for any flaws. Okay. Next है जी adjectival and adverbial phrases, ठीक है. इनकी definition हम पढ़ लेते हैं. An adjectival phrase is a group of words that functions like an adjective. It describes or gives more information about a noun or pronoun in the sentence, ठीक है. मतलब वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो एडजेक्टिव का काम करें या वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें फर्दर डिटेल बताएं, दे आर कॉल्ड एज एडजेक्टिवल फ्रेज, ओके. जैसे एग्जाम्पल है, द मैन कवर्ड इन डस्ट सेट डाउन, ठीक है. कवर्ड इन डस्ट जो है वो इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है. तो इट्स एडजेक्टिवल फ्रेज कवर्ड इन डस्ट. The phrase covered in dust is describing the man. A noun, it provides additional details about the noun, much like an adjective, ठीक है. dusty man. अब स्ट्रक्चर क्या है? एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज है, हैप्पी विद हर रिजल्ट. प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, वर्किंग एट द डेस्क. देन एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब के जो वर्ब को डिस्क्राइब करे कि कोई काम किस तरह से हुआ है. An adverbial phrase is a group of words that functions like an adverb. It modifies or describes a verb, adjective or another adverb, typically providing information about time, place, manner, reason or degree. She ran with great speed, ठीक है. वो बहुत तेज़ रफ्तारी से भागी. तो ये ran word जो है ये verb है, हमारा action है. इसको further describe कर रहे हैं word with great speed. तो ये with great speed जो है that will be called as adverbial phrase, okay. So then they are asking, read each sentence and underline the phrase, then identify whether it is adjectival or adverbial, ठीक है. The house on the corner is up for sale. She walked with determination. The man dressed in black looked suspicious. We arrived after the sunset. And children excited about the trip gathered near the bus. So I have written it down for your convenience, ठीक है. अब कह रहे हैं on the corner, this one, the house on the corner is up for the sale.
On the corner is adjectival because it's describing the house. Then with determination is adverbial, it describes walked. Then dressed in black, adjectival because it describes a man. After the sunset, it's adverbial phrase because it's describing arrived. Then excited about the trip is adjectival because it's describing the children. ठीक है, तो ये हमने सेपरेटली उनको हाईलाइट भी कर लिया और बता भी दिया कि वो adjectival हैं या adverbial हैं. Then comes expand each sentence by adding an adjectival or adverbial phrase as directed in parentheses. The student answered the question. कि स्टूडेंट ने क्वेश्चंस को आंसर किया. अब वो कह रहे हैं एड एन एडवर्बियल फ्रेज टू शो हाउ. अब आप बताएं कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को आंसर किया. मतलब आंसर को हमने मज़ीद एक्सपैंड करना है, उसको एक्सप्लेन करना है एडवर्बियल फ्रेज लगा के. सो द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज है और हमने विद ग्रेट कॉन्फिडेंस खुद से ऐड कर दिया. नेक्स्ट, आई सॉ अ बॉय. मैंने एक बॉय को देखा. अब कह रहे हैं ऐड एन एडजेक्टिवल फ्रेज टू डिस्क्राइब द बॉय. अब बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए कोई फ्रेज खुद ऐड करें. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आई सॉ अ बॉय वेयरिंग अ ब्राइट रेड कैप. ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया कि वो एक रेड कैप पहने हुए था. नेक्स्ट है जी द डॉग बार्क्ड अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज हमने ऐड कर लिया अर्ली इन द मॉर्निंग. देन शी वोर अ ड्रेस. ड्रेस को एक्सप्लेन करना है तो मेड ऑफ शिमरिंग सिल्क. इट वुड बी द एडजेक्टिवल फ्रेज. वी वेटेड इन कम्प्लीट साइलेंस. ठीक है, अब ये वेटेड को कर रहे हैं एक्सप्लेन तो इट विल बी एडवर्बियल फ्रेज. डन. ओके, नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें हमें पता होता है कि एक क्लॉज हमारी मेन क्लॉज है और दूसरी क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन. Each part is the question. Combine the following pair of sentences into complex sentence using main and subordinate clauses. Use appropriate transitional devices and punctuation. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने 2 sentences लिखे हैं. हमने इसको combine करके एक ही sentence बनाना है, but that would be the complex sentence. और complex sentence बनाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हमें एक transitional device की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो देखते हैं हम इसको कैसे convert कर सकते हैं. The flight controllers were prepared for every scenario. They practice every possible failures. तो हम कैसे इसको ज्वाइन करके लिख सकते हैं. The flight controllers were prepared for every scenario because they practice every possible failure. ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया और ये ट्रांजिशनल डिवाइस बिकॉज इसमें यूज़ कर ली. Then comes Margaret Hamilton wrote the software by hand. It prioritized critical tasks during the landing. ठीक है, ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस है. इसको ज्वाइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट. Margaret Hamilton wrote the software by hand which prioritized critical tasks during the landing. ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया जोड़ के और ट्रांजिशनल डिवाइस विच हमने इसके अंदर यूज़ किए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ. Sorry, the last question is still here. That is, write a paragraph about the teamwork involved in the Apollo 11 mission. Using a mix of complex sentences with main and subordinate clauses, incorporate transitional words like although, because, since, while and however to link your ideas smoothly. ठीक है, उन्होंने कहा एक पैसेज लिख लें. तो I have already written down a passage for your convenience. Although the Apollo 11 mission is remembered for the astronauts who walked on the moon, it was the result of an enormous team effort. The flight controllers worked tirelessly, preparing for every possible scenario because even the smallest error could end the mission. Margaret Hamilton, for example, wrote the software by hand, ensuring it could prioritize critical tasks during the landing. While engineers calculated trajectories with precision, seamstresses stitched spacesuit with meticulous care. Since every role was vital, the mission's success depended on trust, collaboration, and expertise. However, without the combined dedication of thousands of individuals, the historic moon landing would have remained only a dream. Okay, this is how we can write this passage. So students, finally we have completed the exercise of chapter number 4, Team Moon. I hope all the questions are well explained. ठीक है, थोड़े से ऑब्वियसली आप लोग को ड्राई भी लगे होंगे बिकॉज
these questions were mostly asked from the literature point of view, क्योंकि स्टोरी के प्लॉट, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसके थीम और उसके सारे एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट को लेके उन्होंने क्वेश्चंस हमें दिए थे, विच आर क्वाइट न्यू फॉर यू ऑल, but I hope I have answered it very clearly and you can learn it well. So please like my video and share some positive comments in the comment sections, and do share it with your friends and colleagues. Okay, I am nothing without your support, and believe me, जब मैं आप लोग के इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लोग को मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, सो बिलीव मी, पूरी एफर्ट जो है ना, वो कहते हैं ना कि आपको दिली सुकून मिलता है. सो आई होप यू विल कंटिन्यू टू सपोर्ट मी. Inshallah, within this week I will try to upload the chapter number 5. Okay, so till then, Allah Hafiz.